Subhanallah, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Allah, Madad Farma. Al-Wahidul Qahar. Ali Allah, Madad Farma. Today, I'd like to take you on a journey of beauty, the universal beauty. Unparalleled in the world is my beloved. Unparalleled in the world is my beloved. There is no beauty other than his. He is universal beauty. Shahe Kareem al Akram. Behold, behold the sun sets and the moon wanes, but the sun of the world of beauty never sets. Shahe Kareem al Akram. From paradise descended his perfect captivation, which perfection exists nowhere else in this world. Shahe Kareem al Akram. Union with the sovereign of beauties in this world is difficult. Union with the sovereign of beauties in this world is difficult. The Mero's union promised in paradise is not possible today. Constant anguish has completely crushed me. Constant anguish has completely crushed me. By God's grace, that anguish is no more. Shahe Kareem al Akram. There exists a treasury filled with the answers of wisdom. Many are the answers, but there is no question. That king of the world's beauty is behind the heart's veil. That king of the world's beauties is behind the heart's veil. How shall I part that veil? No such power I have. Shahe Kareem al Akram. Not a single person of the pen is a pauper in this world. Though bereft of wealth, they are rich in knowledge and letters. Only through the Zulfikar, Shahe Kareem al Akram. O Nasiruddin, imagination is a lightning bird. This not a figment of imagination, this the compassionate's great gift. And those who understand Urdu, I would love to sing it in Urdu. Urdu is a beautiful language, very elegant, eloquent, beautiful language. Jameel Kul. जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं. My beloved is so beautiful. There is no one like him. जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं. जमीले कुल है वही और कहीं जमाल नहीं. ये देख शम्सो कमर को ज़वाल होता है. ये देख शम्सो कमर को ज़वाल होता है. जहाने हुस्न के खुर्शीद को ज़वाल नहीं. जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं. कमाल दिलबरी उसको बिहिश्त से आया. कमाल दिलबरी उसको
बिहिश्त से आया, तो फिर जहान में कहीं और ये कमाल नहीं। जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं। विसाल शाह भूतान इस जहां में मुश्किल है। विसाल शाह भूतान इस जहां में मुश्किल है। जो कल बिहिश्त में है आज वो विसाल नहीं। मुझे मलाल मुसलसल ने खूब रोंद लिया। मुझे मलाल मुसलसल ने खूब रोंद लिया। खुदा के फजल से अब तो कोई मलाल नहीं। जवाब हाय हिक्म से भरा खजाना है। जवाब हाँ तो बहुत है मगर सवाल नहीं। वो शाह कौन हसीना हिजाबे दिल में है। वो शाह कौन हसीना हिजाबे दिल में है। हिजाब कैसे हटाऊं मेरी मजाल नहीं। जहान में अहले कलम कोई भी गरीब नहीं। अमीर इल्म अदब है गर्चे माल नहीं। ख्याल ताइर बर की है ऐ नसीरुद्दीन। अजीम अतियाए रहमान है ख्याल नहीं। जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं। आ जाओ दोस्तों, आज चले एक सफर पर। मैं दिखाऊं अपना सनम तुमको कि इस जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं। उस जैसा हसीन, निराला, रहमान और रहीम कोई भी नहीं। उसकी खूबसूरती का बयान ये ज़बान कर नहीं सकती। उसकी दानाई, उसकी हिकमत, उसका इल्म, उसकी रहमत बेइंतहा है। चले दोस्तों, ख्याल ही में पहुंच जाते हैं सनम के पास और अपने दिल का हाल उसको बताते हैं कि ऐ सनम, तेरे बगैर अब जिया ना जाए। जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं। जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं। ये ऐसा सनम है कि जिसको पहचानने के लिए इल्म और इबादत का सहारा लेना पड़ता है। उसकी खूबसूरती
اس کا حسن علم میں بھرا پڑا ہے. جیسے جیسے علم میں ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ پاتے ہیں. جب ہم اس کی حقیقی خوبصورتی کو علم اور عبادت کے ذریعے جب دیکھ پاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس اس کی تعریف کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں. ہماری زبان تمام ہو جائے، ہماری زندگی تمام ہو جائے، اس کی تعریف ختم نہ ہوگی. رومی اپنی شاعری میں کہتا ہے کہ دنیا کے تمام سمندر اگر انک بن جائے اور تمام درخت اگر پین بن جائے تب بھی اس کی تعریف مکمل نہ ہوگی. جہان میں میرے صنم کی کوئی مثال نہیں، جمیل کل ہے وہی اور کہیں جمال نہیں. There is no beauty other than his. He is universal beauty. شاہ کریم الاکرم، 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 شاہ کریم الاکرم. یا مولا مہربان، ہم تمام داسیاں تیرے حضور میں جمع ہوئی ہیں مولا. اے مولا مہربان، تیرے دیدار کی جھولی، تیری دیدار کی عنایت ہماری جھولی میں ڈال دے مولا. یا مولا مہربان، تیرے حسن کے جلووں کی باتیں کرتے ہیں مولا. یہ دیدار، یہ حسن ہمیں بھی دکھا دے مولا. اس علم کی دنیا میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں مولا. تیری ہر خوبصورتی کو پہچاننا چاہتے ہیں مولا.
तेरी शनाख्त को चाहते हैं मौला, तेरी याद को, तेरे इश्क को चाहते हैं मौला। ऐसा दिल बेकरार हो तेरे इश्क में मौला कि एक लम्हा चैन ना आए। जहान में मेरे सनम की कोई मिसाल नहीं। या मौला तुझ जैसा तो कोई भी नहीं है मौला। ऐसा हुस्न, ऐसी खूबसूरती मौला कि दिल तड़पता है मौला। ओ मौला मेहरबान, ओ मौला मेहरबान, हमारी आजिज़ी, हमारी गिरिया आज़ारी जिक्र को मौला अपने हुजूर में कबूल फरमाना मौला। लाइन पे जो भी दोस्त मौजूद है मौला, इनकी जो भी मुश्किल है, तकलीफ है मौला, ख्वाहिशात है मौला, ए मौला मेहरबान, इनको तू शर्फ मकबूलियत बख्शना मौला, अपने हुजूर में कबूल फरमाना मौला। या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी व लेकती काली, या हाजिर या मौजूद, या शाह करीम हुसैनी अंतल इमाम अल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व तवाती, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। Yali Madad, all friends online. Today we are going to discuss a farman. Naveen Sahab, are you going to display it, please? ये फरमान जो हम डिस्कस करेंगे उसूल दीन का, इस फरमान के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फरमान है। इंशाल्लाह कुछ बातचीत इस फरमान पे करेंगे और दोस्तों की ख्वाहिश पे इसको कुछ मिक्स हम रखेंगे इंग्लिश उर्दू में। जहां जहां कोई बात समझ नहीं आती है उर्दू में, you can always text me here and I can translate it. We are going to display the farman in English, but I'm going to read it in Urdu so more friends can understand the explanation. This farman is farman number 160. If you have the book Das Ruhani Farman, this would be the last farman, and this is made at Dar es Salaam, September 29th, 1899. मोमिन सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हक मौलाना धनी सलामत दाता सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह हाज़िर इमाम ने फरमाया, तुम्हारे दीन के उसूल जड़ के मुतालिक फरमाते हैं। तुम्हारे दीन का उसूल दीन क्या है? तमाम इंसानों का ख्याल उसूल और मक्स पर होता है। तो सबसे पहले मौला के फरमान के मुताबिक उसूल यानी कि जड़, जब हम जड़ के बारे में सोचते हैं तो अगर हम दरख्त की मिसाल लेते हैं, जड़ें कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। हमारा दीन जिन जड़ों पर खड़ा है, अगर हम एक दरख्त की मिसाल लेते हैं और अगर एक दरख्त बहुत मजबूत है, उस दरख्त की जड़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इस जड़ की वजह से दरख्त मजबूती से खड़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दीन के उसूल क्या हैं। इसकी बहुत सारी तावीलात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अव्वल जो तावील, जो सबसे जरूरी तावील वो ये है कि हमारा इस्माइली तरीका जो है वो बातनी तरीका है। हम बातिन पे ईमान रखते हैं, गैब पे ईमान रखते हैं। जब हम बातिन की बात करते हैं तो हमें पीर का गिनान याद आता है। पीर फरमाते हैं, एक कच फिकर मुनिवर अमोने तमारी, मानस रूपे साहिब जानू जी। जब हम इमाम को देखते हैं तो इमाम का जिस्म नजर आता है, इमाम की रूह, इमाम का नूर हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास वो बातनी आंखें नहीं। पीर उस जमाने में भी यही फिक्र करते थे कि अगर हम इमाम के जिस्म को देखेंगे और इमाम के अंदर जो नूर है उसको नहीं देखेंगे तो हम हकीकत को कभी भी नहीं पा सकेंगे।
इमाम की शनाख्त, इमाम के नूर की शनाख्त बे इंतहा जरूरी है। आज ही एक साथी से बात हो रही थी, वो साथी बता रहे थे कि जो इंग्लिश में जो इमाम के फरामीन बुक पब्लिश हुई है, उसमें मॉस्को रशिया का फरमान इमाम फरमाते हैं कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज टू रिकॉग्नाइज द इमाम। और यहाँ पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1899 में हमें एलोगोरी से मिसाल के देकर हमें ये समझा रहे हैं कि दीन के जड़ को पहचानो, दीन का जो मगज है उसको पहचानो। हमारा दीन का मगज क्या है? हमारा दीन जो है वो बातनी दीन है, यानी कि हमें आंखों से वो चीजें नजर नहीं आएगी। जो चीज आंख से नजर नहीं आएगी उसको हम कैसे पहचानेंगे? इल्म के सिवा उसकी शनाख्त, उसकी पहचान मुमकिन ही नहीं है। इल्म के बगैर उस जड़ को समझना मुमकिन ही नहीं है। कोई ये कहेगा कि इमाम ने फरमाया कि भाई इबादत करनी चाहिए, इबादत जो है वो हकीकी सुख की कुंजी है, और हम इतने बरसों से इबादत करते हैं, हमें क्या जरूरत है इल्म हासिल करने की? तो उसका जवाब ये होगा कि हम इमाम ही के फरामीन को पढ़ेंगे, इसी फरमान को पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि इल्म की अहमियत क्या है। कोई भी दोस्त, कोई भी हमारा भाई बहन सिर्फ इबादत पे यकीन करता है और इबादत करता है, तो इमाम फरमाते हैं कि इबादत करने वाला शख्स 40 साल की इबादत के बाद अगर मगरूर हो जाए तो उसकी 40 साल की इबादत एक लम्हे में खत्म हो जाएगी, पानी में मिल जाएगी। कैसे समझ में आएगा कि गुरूर जो है वो गलत है? गुरूर की जो तालीम, जो समझ है वो इल्म से ही आएगी। और गुरूर बहुत सारे किस्म के होते हैं, एक किस्म का नहीं है। अगर हम इसी मिसाल को रहे कि कोई ये शख्स कहे कि भाई हम तो सुबह शाम जमात खाने जाते हैं, ये कहना ही गुरूर करना है, आजिजी की निशानी नहीं। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, पाक समझते हैं, और यही शैतान की बाजी होती है कि वो हमें ऐसी बातों से बहकाए, हमें पता भी ना चले और वो हमारी कमाई को खा ले। इसीलिए ये समझाया जाता है कि दीन की जो बुनियाद है, जो जड़ है, अगर उसको समझना है, सिवाय इल्म के हम इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। फिर इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे दीन का उसूली दीन क्या है? हमें सवाल करते हैं, तो अब हम पर यह लाजिम होता है कि क्या हमने आज तक इसके जवाब को ढूंढा? हमने खुद से कितनी मेहनत की इस जवाब को ढूंढने के लिए? इमाम का फरमाना हमारी गर्दन पे रस्सी के बराबर है। जो इमाम ने फरमाया कि हमें क्या मालूम है, तो हमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके जवाब को ढूंढा? फिर इमाम फरमाते हैं तमाम इंसानों का ख्याल उसूल और मग्ज पर होता है। तो हमने हाल ही में बात की कि इंसान कौन लोग हैं। इंसान वो है जो हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। इंसान वो है जो हमेशा अपनी नफ्स को, अपनी पल्स को चेक करते हैं कि वो जानवर तो नहीं बन गए हैं। क्योंकि जैसे ही एक इंसान बेध्यान होता है, चौकसी से निकलता है, होशियारी से निकलता है, वो फौरन से जानवर बन जाता है। एक और अजीब व गरीब बात आज की दुनिया के हिसाब से कि हम देखते हैं कि हमारे फोन्स में आजकल कितने एप्स होते हैं, हर चीज की याद, हर चीज का रिमाइंडर, क्या खाना खाया, कितने स्टेप्स लिए, कितनी हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन का रेट क्या है, पानी कितना पिया है। हर चीज के लिए एक नाप तोल है। हमारे फोन पे हर चीज का ऐप है और बड़ी खुशी से हम उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और मॉनिटर करते हैं भाई आज कितना पानी पिया, क्योंकि कम पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कितना खाना खाया, कितनी कैलोरीज खाई, कितना वॉक किया, कितना वजन है, हर चीज को मॉनिटर करते हैं। कभी हमने अपनी रूहानियत को मॉनिटर किया?
آج کی دنیا میں ہمیں ایپس کی جو دولت ملی ہے ظاہری دنیا کو سدھارنے کے لیے، ظاہری جسم کو سدھارنے کے لیے ہر چیز کا ایپ ہے۔ ایک مومن کیا پیپر پینسل اٹھا کے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں لکھ سکتا ہے؟ ایسے ایپس کریٹ کر سکتا ہے اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، کہ وہ برابر اپنی پلس چیک کرے کہ آج کیسے اعمال کیے؟ تمام انسانوں کا خیال اصول اور مغز پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ہر وقت انسان بنے رہتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانیں، پہلے اپنے آپ کو انسان تو رکھیں، جانور تو نہ بنے، پھر ہم بات کریں گے کہ بھائی انسان سے آگے فرشتہ کیسے بننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ ہمیں لکھنا پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہم سانس و سانس انسان رہے یا جانور بن گئے۔ اور یہ فرمان جو امام فرما رہے ہیں وہ انسانوں سے فرما رہے ہیں، جانور سے نہیں فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کا خیال اصول اور مغز پر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اور اس کا جو خیال یعنی کہ اس کا سوچ، اس کا وچار ہمیشہ مغز پر ہوتا ہے۔ مغز کیا ہے یہاں پہ؟ جیسے امام نے فرمایا کہ تم بادام کھاتے ہو لیکن بادام کا چھلٹا کھاتے ہو اور مغز کو چھوڑ دیتے ہو۔ مغز جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو چھپا ہوا ہے، مغز کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مغز کا جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے تعویل، تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے باطن، چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے حکمت۔ بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں۔ انسان کا خیال جو ہے وہ ہمیشہ مغز پر ہوتا ہے، ہمیشہ تعویل پر ہوتا ہے، چھلکے پہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ جانور کی حالت میں ہیں وہ ہمیشہ چھلکے کو پسند کرتے ہیں اور چھلکے کو کھا کے خوش بھی رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا بھی سمجھتے ہیں۔ امام کے فرمان کے مطابق جو لوگ انسان ہیں ان کا خیال ہمیشہ مغز، تعویل، باطن کی طرف ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے۔ تم نے ایسے خیالات کبھی بھی کیے ہیں؟ کوئی تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو، تب تم کہو گے کہ میرے باپ کا بیٹا، بلکہ تمہاری چند پشتوں تک جواب دے سکو گے۔ ذرا زیادہ عقل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، پھر ختم۔ جب تم فارغ بیٹھے ہوں گے، آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں کسی کو کہ بھئی تھوڑا ٹائم نکالو کچھ فرمان گنان پڑھ لیتے ہیں، کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں ہم کتاب کھولیں، کہاں ہم علم حاصل کریں، ٹائم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ 24 گھنٹے دنیا میں مصروف ہیں، جیسے آخرت تو آنی نہیں ہے، مرنا تو ہے ہی نہیں، جو ضروری ہے وہ صرف یہ دنیا ہے، جو ٹائم ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ امام انسان سے فرماتے ہیں جب تم فارغ بیٹھے ہو۔ جو لوگ انسان ہیں وہ اپنی زندگی میں وہی چیزیں کرتے ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، خواہش کے پیچھے، ڈیزائرز کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیوں؟ کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کی فانی مادی چیزوں کے پیچھے دیوانہ وار نہیں بھاگتے ہیں وہ لوگ۔ جتنا ضرورت ہو اتنا کام کیا، جتنا ضرورت ہو اتنی بات کی، جتنا ضرورت ہو کام کیا، اس کے بعد فارغ بیٹھے۔ کیا کرنا ہے؟ روح کی کمائی کرنی ہے، روح کا کام کرنا ہے۔ امام نے فرمایا ہے جب تم فارغ بیٹھو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فارغ بیٹھے اور ہم نے خیال کرنا شروع کیا، ہم کہاں تک لے کے جائیں گے خیال کو؟ زیادہ نہیں لے کے جا سکیں گے۔ خالق کون ہے؟ تو خدا ہے۔ مخلوق کون ہے؟ تو ہم ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، پھول پتے درخت سب خدا کی مخلوق ہے۔ زیادہ خیال کو ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ اور امام بھی فرماتے ہیں کہ تم نے ایسے خیالات کبھی کیے ہیں؟ کوئی تمہیں پوچھے تم کون ہو تو تم کہو گے تمہارے باپ کا بیٹا، زیادہ اپنے کچھ جنریشن کا جواب دے سکو گے۔
लेकिन जो ज्यादा अक्लमंद होगा वो आदम तक पहुंचेगा, फिर खत्म। ऐसे ख्याल कब आते हैं? जब वो इंसान इमाम के फरमान के मुताबिक इल्म गिनान की स्टडी करता है, जब भी उसका ख्याल दौड़ता है, वरना कौन आदम की बात करेगा? Those who are truly humans, as Imam is saying, those who are truly humans, they will pay attention, they will give time, and they will reflect. Now, if one were to reflect only without any knowledge, the reflection will not go far because there is no knowledge. What would you think? Oh, okay, there is Allah and Allah has created us. That's all. Those who are lovers of the soul, those who seek progress of soul, they will study, they will gain knowledge and think about these things. This journey is for those who are lovers of the soul. जो लोग रूह के आशिक हैं वो ही अपने ख्याल को दौड़ाएंगे। कहां तक दौड़ाएंगे? किस तरह से? इमाम हमें क्लूज दे रहे हैं, इमाम हमें राह दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आदम तक पहुंचो। क्यों आदम और फिर क्यों खत्म? तो इमाम फिर क्लू देते हैं, इमाम फिर समझाते हैं, तुम ख्याल करो कि आदम कहां से आया। इमाम हमें फरमा रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ आदम पे, आदम कहां से आया, इससे भी आगे जाना है। आदम को किसने भेजा? अरे जिसने हमको भेजा उसने आदम को भेजा, क्यों ये अलग अलग हमें करना है? लेकिन इमाम हमें फरमा रहे हैं इसका मतलब फर्क है, समझ में कहीं कमी है, मग्ज की तलाश अगर हमें है तो हमें ये सवालात करने पड़ेंगे कि आदम कहां से आया, आदम को किसने भेजा। जो इंसान सूफी होगा वो इस ख्याल को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले सूफी की बात करते हैं। आजकल सूफीज्म पे लोगों का बहुत ध्यान है, तो आप लोगों को जान के बहुत हैरत होगी कि दुनिया में सबसे पहले सूफी जो थे वो मौला अली थे। सूफीज्म की शुरुआत मौला अली से हुई है। आजकल जो लोग किताबें लिख रहे हैं और सूफीज्म की बातें कर रहे हैं, एक इस्माइली मोमिन जो इंसान है, जो इल्म गिनान पढ़ता है, वो अली को पढ़ेगा, मौला अली की किताबों को पढ़ेगा, मौला अली की बात करेगा, वो इस इल्म को हासिल करेगा, ना कि दुनिया वालों की जो लिखी हुई किताब है सूफीज्म की उसको पढ़ेगा। जो हमारे इस्माइली स्कॉलर्स ने लिखी हो, जिसमें इल्म गिनान हो, उन किताबों को अगर हम पढ़ेंगे तब हमारा फायदा होगा। सूफी मजहब जो है वो तरीकत पर है। पहले शरीयत, जो कानून है, लॉज है, उनको कैसे निभाना है वो सूफी करते हैं। और जो पल्स चेकिंग की जो आदत है वो एक्चुअली सूफीज्म के अंदर से है, मौला अली की सिखाई हुई है। और इमाम वही बात हमें सिखाते हैं कि अपनी पल्स को चेक करना है। जिस तरह से अपने दिमाग में, अपनी किताब में कहीं एक ऐप बनाना है, कहीं चेकलिस्ट बनानी है कि पूरे दिन में आज क्या किया हमने। सूफी अगर बनना है, सूफी की तरह इमाम के फरामीन को फॉलो करना है, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि जो इंसान सूफी है, यानी कि जो लोग अपने आप को जानवर परे में नहीं डालते हैं, जानवर से ऊपर रख के इंसान रखते हैं, अब इमाम फरमाते हैं कि इस इंसान को सूफी भी होना चाहिए। तो सूफी क्या करेगा? उसकी पहली प्रैक्टिस ये होगी कि वो एक चेकलिस्ट बनाएगा और बराबर एवरी डे वो उसको स्टडी करेगा और देखेगा कि पूरा दिन जो ध्यान, जो ख्याल, जो जिक्र होना चाहिए मेरे अंदर क्या रहा, किसी से बात की तो कैसे बात की, ख्यालात कैसे किए, पूरा अपडेटेड एवरीडे हिसाब किताब होगा। क्यों? कि उस मोमिन को फरिश्ता बनना है, जो काम फरिश्ता करके उसको बताए कि तुम्हारा अमाल नामा क्या है। इमाम ने फरमाया कि तुम पहले अपना अमाल नामा खुद सुधारना शुरू करो। और कैसे सुधरेगा? जिस तरह से आज हम दुनियावी एप्स के अंदर पानी लॉग इन करते हैं, खाना लॉग इन करते हैं, वेट लॉग इन करते हैं, हार्ट रेट लॉग इन करते हैं, ब्लड शुगर लॉग इन करते हैं, इसी तरह अपने आप को, अपने अमाल को लॉग इन करना होगा और देखना होगा। फिर यहाँ पे इमाम जो आदम की बात करते हैं, पहले कहा आदम फिर खत्म, फिर पूछते हैं कि आदम कहां से आया। इमाम हमारी तवज्जो दिला रहे हैं दौर के ऊपर, पीरियड्स,
साइकिल के ऊपर कि आदम कहां से आया, आदम को किसने भेजा। जब कोई मोमिन इस रास्ते पे चल के आदम को ढूंढने निकलेगा तो पता चलेगा कि भाई ये तो एक आदम नहीं है, यहाँ तो आदम की लाइन लगी हुई है। तो ये क्या बात हुई, तो पता चला कि हमारे मजहब में, हमारे तरीके में जो हम चीज को मानते हैं वो है साइकिल्स, कि एक दफा आदम का जो दौर आया वो दौर रहा एक नातिक का जो 1000 साल होता है। आदम जो कि नातिक थे, नातिक यानी बड़े पैगंबर, यूं तो हम कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में हैं, लेकिन 6 जो है वो बड़े पैगंबर हैं जिनको हम नातिक बुलाते हैं। तो आदम जो दर हकीकत में है वो नातिक है। तो अगर आदम नातिक है, आदम से पहले क्या था, एक और आदम था। उस आदम से पहले क्या था, एक और आदम था। कितने आदम थे, ला तादाद, कई गुना। When Mola asks us about Adam, where did he come from, who sent him, that makes us reflect and think that we thought Adam was the first man and then this world was created and the world will end of the story. But Imam says, what was before Adam? Only a moment. Which moment? This moment who is intentionally staying insan, not becoming an animal. Now he's becoming a Sufi. Sufi does what? Checks his pulse. And if you are smiley moment, Imam has already told us to check pulse every night. So Sufi is the one who follows the tariqa. Where I am. The statue of what? Imam says to this human, this insan who is Sufi, to think, where did Adam come from? And when we look into this question, we would find that Adam was no ordinary Paigambar. Adam was a Natik. And now we know that Natik means major prophets, whereas we do know that in totality there are 124,000 prophets. 124,000 prophets. But only 6 Natik. And first Natik is Adam. But then, what was before Adam? There was another Adam. Then there was another Adam. Then there was another Adam. There were unlimited numbers of Adam. Why? Because in our tariqa, we believe in cycles. That is what Imam is drawing our attention to. They find out in your tariqa, what do we believe in? We believe in cycles. We don't believe in a beginning and end. It is non-ending cycle. We are in a circle. Everything rotates. It says in Quran very beautifully, we were studying it yesterday, chapter 36, verse 40. Everything revolves in orbit. Everything is going on in a circular motion. तो आदम से पहले क्या था, एक और आदम था। उससे पहले क्या था, एक और आदम था। ये जवाब, ये समझ उस मोमिन को आएगी जिसने इल्म, गिनान, सुना, पढ़ा, सोचा, समझा, लिखा होगा। उसी को ये बात समझ में आएगी कि आदम से पहले एक और आदम था। और इमाम हमें यही फरमा रहे हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि आदम कौन है, कहां से आया, किसने भेजा। जब इमाम ये सवाल हमसे करते हैं तो क्या इमाम हमको चीट कर रहे हैं? इमाम ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब अवेलेबल नहीं है। अगर आज हम ये कहें कि हमको तो पता ही नहीं है, हमने तो कभी ऐसा इल्म सुना ही नहीं है, कभी किताबें पढ़ी नहीं है, तो इमाम क्या हमें चीट कर रहे हैं? 1899 का फरमान। इमाम दोरवेड़ी गाइडेंस दे रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस फरमान को सीरियसली लिया और इल्म में डुबकी लगाई, किताबों में डुबकी लगाई, बाहर के लोगों की किताबें नहीं, इस्माइली स्कॉलर्स की किताबें, इस्माइली दाई फिदाइयों की किताबें, और मालूम किया कि आदम कौन है, कहां से आया, क्या नाम था उसका। तो पता चला पीर नासिर खुसरो ने तो आदम के बारे में लिखा है। सैयदना अल मंसूर अल यमनी ने किताब में, अपनी किताब में आदम के बारे में लिखा है। हम में से कितने लोगों ने ये किताबें पढ़ी हैं?
कितने लोगों ने इन किताबों के बारे में सुना था कोविड-19 से पहले? क्यों कोविड-19 में ही समहाउ हमें ये चीजें पता चल रही हैं? क्या ये चीजें इस दुनिया में इस टाइम से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी? तो पता चला 1000 साल पुरानी किताब है वजीदीन, तो 1000 साल, और ये फरमान 1899 का है। हमारी उम्रें क्या है? किस उम्र में हम इन किताबों को जान पा रहे हैं? तो यहाँ पे सवाल ये होता है फरमान बरदारी का। जब इमाम ने हमें हुक्म किया कि तुम ख्याल करो कि आदम कहाँ से आया, आदम को किसने भेजा, जो इंसान सूफी होगा वो इस ख्याल को पकड़ लेगा। सूफी कौन? जो अमल करता है, तरीकत पे यकीन करता है, फौरन से अमल करना। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हम इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे कि हमें जानना चाहिए नातिक क्या है, पैगंबर क्या है, साइकिल्स क्या है, दौर क्या है, कितने दौर हैं, क्या हुआ है। ये तमाम चीजें जो है हमें ढूंढनी होंगी, इनके जवाबात मालूम करने होंगे ताकि हम इमाम के फरमान बरदार मोमिन बने। फिर इमाम फरमाते हैं, तुमने देखा है कि बारिश आसमान से जमीन पर गिरती है, बारिश आसमान से जमीन पर गिरती है, जमीन पर गिरकर खुश्क हो जाती है, वो कतरा कतरा होकर दरिया में मिलता है और दरिया समंदर में मिलता है, तमाम पानी बिलाखिर वापस समंदर में जाता है। इसी तरह तुम्हारा रूह असल है। Mola has given beautiful example of water relating it to our soul. जब बारिश आसमान से जमीन पर गिरती है, बारिश का कतरा जब आसमान से जमीन पर गिरता है तो जमीन पे कतरा दिखता नहीं है, जमीन उसको जज्ब कर लेती है, खो जाता है कतरा, लेकिन वो कतरा अपना सफर जारी रखे हुए होता है। वो कतरा कतरा चलते 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 दरिया में पहुंच जाता है, फिर दरिया चलते चलते समंदर में पहुंच जाता है। आखिरकार तमाम पानी जो आसमान से बरसा था वो तमाम पानी समंदर में मिल ही जाता है। यही मिसाल रूह की है कि रूह जो इमाम से जुदा होके आई है, हम तमाम सिंगल सोल से पैदा हुए हैं। जैसे सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 1 में फरमाया गया कि हम तमाम एक ही रूह से पैदा हुए हैं, एक रूह से हम मल्टीप्लिसिटी में हो गए। वो वहादत है, हम कसरत में हैं। जब कतरा आसमान में था वो वहादत में था, लेकिन जैसे जमीन पे गिरा कतरा 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 हो गए, मल्टीप्लिसिटी में आ गए, कसरत में आ गए, इतने सारे कतरे। लेकिन जो कतरा अपना सफर जारी रखता है वो ही समंदर में मिलता है। When we look at the clouds, it's like one big cloud. We cannot distinguish between clouds. It's one. It's oneness. If you're taking the example of water to understand the journey of the soul, the cloud looks like one. But when it drops on the earth, it is drops, single, so many drops, multitude, multiplicity. But in reality, they were all one there. But when they fall down on the floor, there are so many numbers, all going in different directions, being absorbed in different ways. But those drops who continue their journey to go further, they eventually get connected to river. Flowing river will connect to ocean, and they'll finish their journey. It depends on the drop willingness to continue to move further. इमाम ने एक और फरमान में फरमाया कि मोमिन को हमेशा ये चाहत रखनी चाहिए, मोमिन हमेशा ये देखता है कि वो मंजिल की पहली सीढ़ी पर है, वो हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। That is the quality of the drop, कि जो कतरा आगे बढ़ने की कोशिश करता है वही अपनी मंजिल को पाता है।
तो जो मोमिन है, जो चाहता है कि उसको आगे बढ़ना है, उस आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है, कसरत करता है, रियाजत करता है, तभी वो अपनी मंजिल को पाता है। वक्त लगता है, लेकिन वो मंजिल को पाता है। वक्त जो है, जब हम टाइम की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम को जब हम समझना चाहते हैं तो टाइम का मतलब ये होता है कि कोई मोमिन सालिक अपनी इस 80-100 साल जिंदगी में उस पूरे सफर को खत्म करके ड्यूरिंग लाइफ टाइम फनाफिल ईमान हो जाए, ये मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो कुरान के अंदर से, फरमान के अंदर से जो नंबर दिया गया है वो है 50,000 साल का नंबर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी ये नंबर दिया है अपने फरमान में कि 50,000 साल लगते हैं, और कुरान में भी ये नंबर है कि एक रूह को खुदा से मिलने के लिए 50,000 साल मैक्सिमम टाइम जो है वो ये लगता है। मिनिमम टाइम हमारी लाइफ टाइम 80 साल, 100 साल। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कितनी तेजी से सफर को जारी रखते हैं ताकि हम उसके साथ एक हो जाए, अपने सनम के साथ एक हो जाए। कैसे हम अपने सनम से दूर रहें? ऐसा इल्म जब मोमिन हासिल करता है, उसके इश्क में अपने आप को दीवाना करता है, फिर उसको किसी पल चैन नहीं आता है। वो अपने सफर को दौड़ दौड़ के कंप्लीट करता है। क्यों? कैसे अपने सनम के बगैर रहे? नहीं रह सकते। एक हकीकी चाहने वाला मोमिन अपने जानान के बगैर नहीं रह सकता है। उसकी जिंदगी उसका जानान है। इसी तरह तुम्हारा रूह असल है। तुम्हारा रूह असल है, उसका मकाम बहुत ही बुलंद है। जो अक्ल से नहीं समझता और बुलंदी पर जाने की ख्वाहिश नहीं रखता, वो जमीन पर गिरकर खुश्क हो जाने वाले पानी की मिसाल है। जो ऊपर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ऊपर पहुंचने के लिए बंदगी ज्यादा करते हैं और मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बंदगी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम बंदगी के वर्ड को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो नूरानी वक्त की इबादत की टाइम की बात हो रही है। 4 से 5 हमने इबादत कर ली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये इल्म की कमी से हम इस अल्फाज को नहीं समझ रहे हैं, इस अल्फाज को हम नहीं समझ रहे हैं। बंदगी का जो मतलब है, बंदगी जो है वो बंद से निकला है, स्लेवरी से निकला है, ओबीडियंस से निकला है, अपने आप को सबमिट कर देना, सबमिशन से निकला है। कोई बंदा अपने आप को सबमिट कर दे। जब हम सबमिशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ नूरानी वक्त की इबादत नहीं आती, जिक्र भी आता है, अमाल भी आते हैं, इल्म भी आता है, तमाम चीजें आती हैं। इनफैक्ट जब इल्म की समझ होती है तो अमाल की समझ भी आ जाती है। जब इल्म आता है तो इश्क भी बढ़ता है। जब इल्म आता है तो इबादत में ध्यान भी लगता है। तो यहाँ पे अल्फाज को हम समझें, इल्म की बुनियाद पर इन अल्फाजों को समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना हम गलती पर हो जाएंगे। इमाम फरमाते हैं कि हमारा रूह जो है वही हकीकत में असल है। रूह का मकाम बहुत बुलंद है। जो हमने अभी बात की कि इमाम जो है वो यूनिवर्सल ब्यूटी है, इमाम जो है जमील कुल है, इमाम इतना हसीन है। हम इमाम के रूहानी बच्चे हैं। वो हमारी माँ और हमारा बाप है। हम उसकी जात का हिस्सा हैं। हमारी रूह का मकाम बहुत बुलंद है। कहाँ है वो मकाम? हमारे इमाम के साथ है। हमें अपने इमाम में एक होना है, इमाम में फना होना है। लेकिन इस वक्त तो हम नहीं है फना। इस वक्त तो हम कभी जानवर की हालत में, कभी इंसान की हालत में, कभी फरिश्ते की हालत में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जहां पहुंचना है वहां कैसे पहुंचेंगे जब तक हम मुस्तहकम, कंसिस्टेंट अपने चलने में ना होंगे। इमाम क्या फरमा रहे हैं कि रूह का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। जो अक्ल से नहीं समझता, अक्ल इल्म से आती है। अक्ल विदाउट इल्म इट्स इम्पॉसिबल। इंटेलेक्ट विदाउट नॉलेज इज इम्पॉसिबल।
अकल के बारे में जितनी हम बात करें कम है। खुदा ताला कुरान में फरमाते हैं सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, इन्हें समझ नहीं है। हम में से कितने अंधे गूंगे बहरे हैं? दुनिया में कितने लोग अंधे गूंगे बहरे हैं? क्यों खुदा ने इंसानों को अंधा गूंगा बहरा कहा? क्योंकि हमने अपनी आंख, अंधे, गूंगे और बहरे, अपनी आंख, कान और जबान को सिर्फ दुनिया में इस्तेमाल किया है। जब हम इंद्रियों की बात करते हैं ना, जिब इंद्री, ये तमाम इंद्रियां हमारी सेंसेस हैं, हमने सिर्फ दुनिया में ही लगा के रखा है। When Mola talks about intellect, truly we can speak about intellect forever. Intellect is so important. How many Faramis, how many Quranic verses do we need for us to wake up? And I was referring to one of the verses, Summun, Bukmun, Umyun, Fahum, La Yarjaun. These are deaf, dumb, and blind. They don't understand. And Allah is saying this to humanity. How many in humanity are deaf, dumb, and blind? Not very many. But what Allah is referring, what Imam is referring, what Imam is explaining to us, giving his guidance, that if we behave, if we use our senses, eyes, ears, and tongue only for the worldly benefits, we are literally behaving like an animal. Because we are believing what we are seeing. There is no batin, there is no akhirah. This is my reality. This is my existence. जो अक्ल से नहीं समझता और बुलंदी पर जाने की कोशिश नहीं करता. In order to progress, imagine the worldly progress. We are living in a meritocratic society. How much hard work we put in for worldly progress, for our education, whatever you take example, businesses, jobs, we are constantly fighting to move up, move up. Competitive society, meritocratic society. But here Imam is talking about those who do not have intellect and those who do not want to climb up. Aren't we climbing up? Aren't we progressing? Look at us. Where were our forefathers and where we are sitting? Oh, we are working very hard to progress. Why would Imam then talk like that? This farman is to only those who know with knowledge, they use their intellect and they believe that there is a life after this life, which is not visible. There is no app to remind us of that life unless we work on it. We make ourselves realize. We stay in consistent remembrance to remind ourselves and have this desire to progress. जो लोग ये चाहत रखते हैं कि उन्हें बुलंदी पर पहुंचना है, उन्हें आगे बढ़ना है, वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, अक्ल से एम को सुधारते हैं. अक्ल सिर्फ इंसान के पास है. जानवर के पास जो अक्ल है वो इंस्टिंक्ट्स के बेस पे है. जितनी उसकी इंस्टिंक्ट्स है इतना ही वो जानता है. लेकिन जब इंसान की अक्ल की बात करते हैं तो इंसान की अक्ल कितनी पावरफुल है कि अगर हम एग्जांपल लें कि दुनिया के अंदर अगर आज लेट्स से डायनासोर थे एक जमाने में, या आज हम देखते हैं वेल मछली को बहुत बड़ी मछली है, या कोई भी दुनियावी कोई आफत है, इंसान बज़ाहिर फिजिकली इतना छोटा सा है, उसका दिमाग इतना छोटा सा नजर आता है, लेकिन वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके कोई भी बड़ी आफत को वो काबू पा सकता है. इंसान की अक्ल इतनी पावरफुल है. उसी अक्ल को अगर वो रूहानियत के लिए इस्तेमाल करे, अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करे, अपने आप को इस याद में रखे कि कल मर के मुझे आखिरत में जाना है, आगे जाने की ख्वाहिश रखे, तो वो उस कतरे की मिसाल पर नहीं होगा जो जमीन पे गिर के खुश्क हो जाता है. वो इंसान, वो कतरा ऐसा होगा जो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा. क्यों? कि उसको अपने दरिया में मिलना है, दरिया के बाद उसको समंदर में मिलना है. क्यों इमाम ने ये मिसाल दी? इमाम हमें ये बता रहे हैं कि ये सफर भी दर्जात में है. पहले एक दर्जा मुकम्मल होगा, फिर दूसरा दर्जा होगा, फिर तीसरा दर्जा होगा. एकदम से हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते. दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ेंगे.
जो ऊपर जाने की ख्वाहिश रखते हैं वो ऊपर पहुंचने के लिए बंदगी ज्यादा करते हैं। तो बंदगी को हमने समझ लिया है, और मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं। मोहब्बत अगर किसी को चाहिए, मोहब्बत तो इल्म में ही है, क्योंकि इल्म ही से पता चलता है कि मेरा मौला कैसे खूबसूरत है। फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है। शुरू में हमने ये बात की, पीर ने क्या फरमाया, एक कच फिक्र मुनिवर हमने तुम्हारी, मानस रूपे साहिब जानू जी। यहाँ पे जो तारीफ हम इमाम की करते हैं वो फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल जो इमाम दुनिया में काम कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इमाम का जो नूर है उसकी बात कर रहे हैं, उसका जो बातिन में स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं। जब तक इल्म ना हो हम उसकी शनाख्त नहीं पा सकते हैं। जब तक उसकी शनाख्त ना हो हम उससे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। जब तक मोहब्बत ना होगी हम उसको भूल जाएंगे, दुनियादारी हम पर सवार हो जाएगी। तमाम आज जो हमने बातें की उसका जो मगज, उसका जो हासिल है वो है इल्म में आगे बढ़ना। जब तक हम इल्म को अपना मकसद जिंदगी का नहीं बनाएंगे तब तक जो जो हम चाहते हैं वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहना और है, हासिल करना और है, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग हकीकती हैं, जो लोग मोमिन हैं, जो इमाम के फरामीन को मानते हैं और फरमान बरदारी को चाहते हैं, वो इल्म से अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम रोकते हैं, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मिलेंगे और इसी पे आगे बात करेंगे। कोई भी सवाल हो अभी आप शेयर कर सकते हैं, बाद में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी सवाल हो हम इस पे बात कर सकते हैं। Thank you so much for joining, friends. If you have any questions, do feel free to ask or text. Murali Mudar. आप बोलते कि हमें अपने भूल ही जाए, राइट? How can we do that? We can't even live without him for 1 minute. How can we do that? Every time I say to myself, Mola, you didn't help me, you don't love me, so I'm not going to come and ask you anymore, I'm not going to talk to you anymore. But he knows this is a crazy lady, she can't live without me even 10 minutes. And I go back in 10 minutes, I say, sorry, I can't live without you. How can we live without you? You know, only him we are surviving. All of our nerves survive only on him. How can we survive without him? True, very true. Very true. Shukran lillah walhamdulillah. Shukran lillah walhamdulillah. Thank you, Yarima. Very nice. I enjoyed so much. Shukran Mawla, shukran Mawla. Mola give you all the happiness and healthy in the morning. Ameen. Ameen, ameen. Shukr, shukr. Ya Ali Madad Baba. Ya Ali Madad. Ya Ahmad Ben, Ji, Ahmad ji. Ben, Yes, when yes. you said akal, ilam se aati hoy. Can you say a little further about here? You said akal, ilam se aati hai. So now we are talking here akal, the intellect. Okay, Is let me it true? bring some more farmans next time. Okay, this is a beautiful question. So yes, let me share some more knowledge on it next time. Very good question. Thank you. Thank you so much. Mola seva kabul kare. Ameen, ameen, ameen. All right, friends, then I'll take your leave if there's no question. Yali Mother, Yali સુખર મોલા સેવા જાનમાં આપે સેવા કરવા આલા હિંમત શક્તિ પ્રેરણા તંદુરસ્તી ને મોકા આપે અને વધારે સેવા કરવા દે તમને અને ખુશમાં રાખે. I was going to ask the same thing કે અકલ અને ઇલમ નો ઇલમ, so next time. અને ઉસુલુદ્દીન you said તમે સમજાવ્યું કે મૂળિયા, right? મૂળિયા મજબૂત હોય, રાઈટ? આપણે મૂળ હોય મજબૂત હોય તો જ ઝાડ હોય ને મજબૂત ઊભું રહી શકે, એટલે મૂળિયા સુરેદેન, રાઈટ? जी बिल्कुल.
બરાબર છે ને એનીવે અને મને કઈ બીજા ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તમે નંબર આપી શકો છો કે નહીં એમ અલાઉ તમે નવીનથી લઈ શકો છો. નવીન પાસે ઓકે થેન્ક યુ ઠીક છે? થેન્ક Okay. યુ શુક્ર બોલા બહુ તાદી મજા આવી કે થેન્ક યુ મોલા સેવા કરવું પડે હે સુખી રાખે હા. અલ્લાહ બેલ બેટા Allah, Yali Madad, Yali Madad.